ہاں، اب آتے ہیں لسانیات کی طرف۔ وہ جتنا ہم لوگ کو پڑھنا نا، موسمیات، فونمیات، یہ سب جو ہے اس کے طرف ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بیسک چیزیں جو ہے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیٹ میں اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن عملی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ لسانیات کسے کہتے ہیں؟ زبان کے سائنسی مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی زبان ہے، اس کو اگر سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو اچھا، ایک بات یہ بار بار یہ آتی ہے، سائنسی مطالعہ کیا مطلب ہے اس میں؟ بار بار یہ دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک مطالعہ، سائنس کی بات کہاں سے اردو میں آ جا رہی؟ یا سائنسی مطالعہ ہے کیا؟ تو یاد رکھیے گا، سائنس میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو سسٹمیٹک وے میں، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو پریکٹیکلی جو ہے اگر اس کو انالائسس کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک مطالعہ۔ سمجھے؟ یعنی سائنسی کے ہونے کے لیے ایک تو ترتیب کا ہونا ضروری ہے، اور ایک جو ہے اس کے پریکٹیکلی جو ہے ایک جگہ جو ہونا چاہیے۔ اگر سائنس کی بات کریں تو ایک تو سائنس میں کسی چیز کے اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کیا ہے، ایک لیب ہوتا ہے جس میں لیب میں اس کو جانچ کیا جاتا ہے۔ یعنی لیب کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ سسٹمیٹک وے ہونا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سسٹم ترتیب سے تو ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، لیب ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ تو چونکہ ہم لوگ اردو والے ہیں، ہم لوگ کا دل بہت بڑا ہے، اور بہت چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہے، بڑی سوچ لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا ہے، پورے جو ہے علاقہ کو، پورے سماج کو، یا پورے جو ہے ایک سسٹم کو ہی ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ پورا ایک کیا ہے، لیبورٹری ہے۔ تو ایک زبان کا پورا جو نظام ہے، اس کو ہم لیبورٹری مان لیے ہیں، اور اس کو سسٹمیٹک وے میں جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ سائنٹیفک مطالعہ ہو گیا۔ بعد میں اس کو کوئی بھی مطالعہ کرنا چاہے اس نہج پہ تو آگے اس کو بڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جب لسانیات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات آتی ہے افلاطون کا، پلیٹو کا۔ ان کی کتاب ہے کریٹیلس، اور علم زبان کے تعلق سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ اور زبان کے مطالعے کے سائنسی بنیاد کب بنی؟ 20ویں صدی کے آغاز میں، یعنی 1901 یا 1910 اس شروعات میں۔ اور یہ کب شروع ہوئی؟ جب سوئٹزرلینڈ کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے فریڈینن ساسور، ایسے ان کو ساسور سے زیادہ مشہور ہے۔ ساسور کی کتاب منظر عام پہ آتی ہے لسانیات پہ۔ اس سے پہلے زبان کی بات تو ہوتی تھی، لیکن باضابطہ اس پہ بحث نہیں ہوئی تھی، یہ الگ شعبہ نہیں بنا تھا۔ زبان کا الگ شعبہ بننا کب شروع ہوا؟ جب ساسور نے اپنی کتاب لے کے آئی اور ساسور نے اس پہ بات کرنا شروع کیا، تب جا کے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے کہ زبان بھی کوئی چیز ہے، اس کے بھی الگ الگ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور تو یہ اس کے بانی کے طور پر کون ہے؟ ساسور ہے۔ ساسور نے پہلی بار زبان کے تقریری روپ کو، ایک تو بات یہ تحریری پہ تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے، جو بھی ہم لوگ ڈیوائڈ دیکھیں وہ تقریری پہ، بول چال کی زبان کو، تحریری پہ نہیں۔ تقریری روپ کے جانب اہل علم کو کی توجہ مبذول کی، دیکھتے ہی دیکھتے ماہر لسانیات کی ایک صحت مند تحریک نے جنم لیا، اور اس طرح یہ جدید لسانیات کے شعبے کا قیام۔ اس سے پہلے الگ شعبہ نہیں تھا لنگوسٹک کا، وہ الگ الگ یہ لوگ جو ہے مطالعہ کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا باضابطہ طور پر زبان کا مطالعہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں زبان کی، بات کرتے ہیں، یہ آپ کے نیٹ سے الگ کی چیز ہے لیکن آپ کو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ زبان بن کیسے رہی؟ دیکھیے، سب سے پہلے اشارے سے بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی اپنا کام اگر کرتے ہیں تو اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ اگر یہاں سے آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ کی زبان نہیں سمجھی جاتی ہے تو آپ اشاروں سے کام لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے اشاروں اور آوازوں کو جب، اب جو اشارہ ہے آپ اسی کو اگر معنی دیتے ہیں تو وہ بولی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے مان لیا جائے یہ پین ہے، اگر اس پین کو اشارے سے بات کر رہے ہیں اس طریقے سے، لیکن اس پین کو اگر کسی نے اگر کتاب نام دے دیا ہوتا شروع میں تو اس کا نام کتاب ہی رہتا، لیکن
इसका नाम दिया, स्टाइलर दिया कि हाँ इससे लिखने का काम किया। एक क्या है, एक अलामत है। अब इस अलामत को क्या कर दिया, एक नाम दे दिया, यानी एक माने दे दिया। और जब माने देते हैं तो बोली हो जाती है। यानी सबसे पहले अलामत के तौर पर चीजें आई हैं, उसको लोगों ने नाम दिया, माने दिया, तो वो क्या है, बोली में हो। तो यानी इशारों के बाद, यानी इशारों से है, इसके अगर माने को दे रहे हैं, यानी इसका कोई मतलब अगर दे रहे हैं, तो वो बोली की शक्ल इख्तियार कर ली जाती है, यानी बोली बन जाती है। और यही बोली जो है, आवाज जो है, इसको अगर तसलसल से अगर बोला है, इसको अगर तसलसल से जोड़ दिया जाए, यानी उसको कायदे से अगर जोड़ा जाए, तो फिर क्या है, लफ्ज की तश्कील पर लफ्ज बनता है। यानी अब हर्फ है और उसके बाद लफ्ज बन जाता है, अगर उसी आवाज को सही मानों में सही तरतीब से अगर जोड़ते हैं तब। लफ्जों के मखसूस तरतीब है, जब लफ्ज है उसके मखसूस तरतीब अगर देखते हैं, तो फिक्रे और जुमले बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इशारा, इशारे के माने दे रहे हैं तो बोली, उसके बाद यानी हर्फ बनता है, और वही हर्फ मतलब आवाज। अब उसी को अगर बेहतर ढंग से अगर एक जोड़ते हैं तो लफ्ज बनता है। लफ्जों का अगर सही तरतीब देते हैं तो जुमले बनते हैं। उसके बाद बोलियों से जबान का अमल शुरू होता है। ठीक है, जब बोलने लगते हैं यहां से फिर जबान, यानी बोली की भी सही तरतीब अगर दे रहे हैं। मुकम्मल जबान बनने के लिए कवायद यानी ग्रामर की जरूरत है। ठीक है। जबान किसी को कहेंगे जिसमें आपके क्या है, कोई ग्रामर है, कोई कवायद है, कोई उसूल है। जब तक उसूल नहीं है तब तक बोली है, जहां उसमें उसूल पैदा कर दिए वो जबान बन जाती है। ये कंफ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए, अब समझ में आना चाहिए जबान के क्या स्ट्रक्चर है। इशारा देख रहे हैं, लफ्ज देख रहे हैं, जुमले देख रहे हैं, फिक्रे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बोली किसे कहेंगे, जबान किसे कहेंगे। जब तक के बोली में अगर ग्रामर नहीं है वो बोली है। जैसे ही उसको ग्रामर यानी किसी न किसी उसूल के पाबंद बना दिए, तो वो क्या है, जबान बन जा रही है। ग्रामर मुकम्मल होने के बाद अगर उसमें ग्रामर यानी उसके उसूल अगर बन जाते हैं, तो फिर जो है अदब की तरफ आगे बढ़। अदब देखिए कितना दूर पे लिखा जा रहा है, यानी जबान बिल्कुल फरोग पा जा रही है, उसके उसूल उसके कवायद अगर बन जाते हैं, तो फिर ये अदब की तरफ आगे बढ़ती है जबान। अब जबान का मुताला किससे है, जबान का तज्जिया जो है तौजीही मुताला, यानी वजाहत के साथ इसको मुताला, तौजीह मतलब वजाहत क्या, और उसके बाद वजाहत और इतलाक। जबान का तजिया, तौजीही मुताला और इतलाक, यानी उसकी वजाहत करने के लिए और उस पे जो अमली तौर पे जो काम होता है वो लिसानियात की निशानदेही करता है। यानी जबान के तजिया कर रहे हैं, उसकी वजाहत कर रहे हैं, फिर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसका यानी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी को लिसानियात में। अब इसमें मुताला क्या होता है, आज़ाए सौत, यानी जो साउंड ऑर्गेन है, यानी आपकी जो आवाज निकलने वाली जो आजा है, जो मुंह के जो हिस्से हैं, उसकी भैया उसका मुताला होगा। और उसके बाद आज़ाए तकल्लुम, जिसे हम स्पीच ऑर्गन कहते हैं, यानी कौन कौन, यानी एक तो है कि आवाज कहाँ कहाँ से निकल रही, कौन सी आवाज भारी है, कौन सी पतली आवाज है, कौन सी क्या आवाज है, आवाजों का मुताला कर रहे हैं। उसके साथ साथ आवाज कहाँ से निकल रही है, वो ऑर्गन क्या क्या है, उसको कहते हैं। इन चीजों के बारे में मुताला किया जाता है। इनमें चार चीजें सबसे ज्यादा अहम है। एक तो है कि स्पीच, समझे, यानी बोलना। उसके बाद वॉइस यानी आवाज। उसके बाद जबान लैंग्वेज। उसके बाद एसेंट यानी लहजा की बात करते हैं। तो ये सारे आपके लिसानियात से ताल्लुक है, इन चीजों में बात करते हैं। यहीं से आपका आगे का शुरू होगा, जो कि फोनमियात मार्फिमियात जो आपके सिलेबस में है। ये थोड़ा सा आजा के वगैरह में वो वहां पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया कर चुके हैं, इसलिए कि जबान की बात हम लोग कर रहे थे। तो जब जबान बन जा रही है, तो अब जबान की जो ग्रामर की बात देखेंगे, तो सबसे पहले बात आती है ग्रामर के तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हम कवायद की बात करेंगे, कवायद की अगर बातें करते हैं कि तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका देखते हैं कि आपको इल्म हिजा, उसके बाद इल्म सर्फ, और उसके बाद इल्म नहव। सर्फ और नहव आगे पढ़ना है। इल्म हिजा, इसमें आपको जो बात होगी वो हर्फ से बात होगी, अलिफ बे, अलिफ से लेके ये तक के कहाँ से निकल रही है, किसकी आवाज कहाँ है वो।
सर्फ में जो बात होती है वो लफ्ज की बात होती है, इन लफ्ज के ताल्लुक से बात होगी। इस पे बहस होगी कि लफ्ज कैसे बन रहे हैं, कौन सा मुरक्कब है, मुफरद है, कौन सा लफ्ज है, हकीकी है, मजाजी है, कौन सा है। उसके बाद नहव में हम लोग बात करते हैं, जुमले की बात करते हैं, यही ग्रामर में है इन चीजों को। तो इल्म ऑर्थोग्राफी में जिससे हरूफ की आवाजें और तादाद मालूम हो उसे इल्म हिजा कहते हैं, और इसके साथ साथ हरूफ का साइंटिफिक मुताला किया जाता है। हरूफ किसको कहेंगे? जबान और होठों के मिलने से आवाज में जो फर्क पैदा होता है उन्हें हरूफ कहते हैं। उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद 36 है, कहीं आपको 37 भी कहा जाता है। उसके बाद 15 हिकारी जबान या आवाज है, यानी हिकारी जिसमें दो चश्मी है लगा हुआ रहता है, बे में है मिलभा, पे में लफा, था ढा, ये सब जो है 15 हिकारियां। तो कुल जो है 51 है अगर 36 की बात किया जाए, लेकिन हमजा को भी अगर जोड़ा जाता है तो आपको टोटल जो है 52 है। उर्दू का अगर रस्मुल खत है वो आपको अरबी फारसी अरबिक है। ये हमेशा गलत करते हैं, जब भी मैं कॉपी चेक करने के लिए जाता हूं तो बच्चे को पता ही नहीं है कि उर्दू का रस्मुल खत क्या है। तो कभी वो लिख देंगे रोमन लिखेंगे, कभी उर्दू को लिखे, अजीब अजीब, उनको रस्मुल खत पता ही नहीं है कि लिखा क्या है। तो क्या है, फारसी अरबिक है या पश्तो परसो अरबिक है, यानी दोनों मिला के है, इसका रस्मुल खत है। देखिए, उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी, तुर्की, कश्मीरी, पश्तो और साइकी दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। ठीक है। दुनिया में उर्दू बोलने वाले की तादाद तकरीबन जो है 900 मिलियन से ज्यादा है। तो अब ये देखिए जबान है और उर्दू के ताल्लुक से, इसके बाद इसके जो आपको खत्ते नस्तालीक वगैरह है, ये सारी चीजें आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज टाइम यहीं तक महदूद है। यहाँ तक आप इसको गौर से मुताला कीजिएगा, तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं इसको खींचे, क्योंकि याद होना भी जरूरी है। ये सारी चीजें जो है आप लोग अमली जिंदगी में तो करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि अलग अलग चीज की जबान क्या है और लफ्ज क्या है, कैसे बन रहा है। इसके साथ साथ रमूज औकाफ जो है इसमें पढ़ाना है, कब जो है आपका सख्ते का इस्तेमाल करेंगे, कब आपका फुल स्टॉप की बात करेंगे, कल आप आपको इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, वो सब के सब इससे लगातार आगे पढ़ना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, 2-3 मिनट है मेरे अपने पास।